Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 29th October 2021. I am sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. जैसा आप लोग देख रहे हो कि स्कूल में हम सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, एक दिन में एक सेक्शन को ही बुलाते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं सो दैट social distance can be maintained. So follow everything to keep yourself safe. As you can see on the board, we have started with chapter number 9. And in this chapter children, we are learning about the concepts of height and length. ठीक है, अभी इसमें हम height और length के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे मैंने taller and shorter बताया, so where do we use taller and where do we use shorter? ठीक है, taller and shorter both are describing words. जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ते हो ना, describing words हमने पढ़ा था, the words which tell us something more about any naming word. कोई भी नेमिंग वर्ड के बारे में जो वर्ड्स हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है, बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. टॉल बॉय, टॉल ट्री, शॉर्ट गर्ल, शॉर्ट चाइल्ड, ठीक है, शॉर्ट वुमेन. Tall and short, they tell us about the height of any person or anything. जैसे building है, tree है, people are there, लोग हैं जैसे human beings. तो उनकी जैसे जिराफ को हम बोलते हैं जिराफ is the tallest animal. ठीक है, जिराफ has a long neck, जिराफ is the tallest animal. ठीक है, तो tall हम यूज करते हैं for height. Tall and short opposites हैं दोनों, describing words हैं, both are opposites. So tall and short are used to describe height. Okay, height of anything. जैसे बताया अभी building है, कोई people है, tree है. Taller, shorter is used when we are comparing two things. जब हम दो चीज़ों को compare करते हैं then we use taller and shorter. Okay, coconut tree is taller than a mango tree, or we can say mango tree is shorter than a coconut tree. ठीक है, taller, shorter. Giraffe is taller than a cow, or a cow is shorter than a giraffe. Okay, तो taller and shorter we use when we compare two things. फिर हमने पढ़ा tall, taller, tallest. ठीक है, tall, taller, tallest, that is when we arrange things according to their height. And when there are more than two, जब टू है तब तो हम टॉलर एंड शॉर्टर यूज करते हैं कंपैरिजन. बट व्हेन देयर इज समथिंग मोर देन टू, ठीक है, तब हम टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट यूज करते हैं. ठीक है, टू मतलब इट कैन बी 3, 4, 5, 10, 15, कुछ भी हो सकता है. तो सपोज ट्रीज हैं तो ग्रुप ऑफ ट्रीज में विच ट्री इज द टॉलेस्ट. ठीक है, बच्चे हैं तो हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, हु इज द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इन द क्लास. Tallest and shortest we use when there are more than two things or two people. Okay, so tall, taller, tallest, that is when we arrange according to height. जैसे हमने बुक में देखा, turn to page number 117 in your maths book. Page number 117. This is the page number 117 in your maths book. यहाँ पे हमने देखा tall, taller and tallest. Rohan says, I am Rohan, I am tall, my mother is taller than me, my father is the tallest. तो here we are talking about three people. यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. रोहन है, उसकी मम्मी है और उसके पापा हैं. तो उन तीनों में रोहन टॉल है, रोहन की मम्मी उससे टॉलर है और रोहन के पापा सबसे टॉल हैं. तो जब when there are more than two, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा ट्रीज हैं, बिल्डिंग है, एनीथिंग, और उनकी जब हमें हाइट कंपेयर करनी है, हाइट बतानी है, in that case we use tallest and shortest. ठीक है, तो tall, taller, tallest हम जब according to height, जैसे आप very common example is जब आप स्कूल में जब टीचर्स आपकी लाइन बनवाते होंगे तो क्या बोलते हैं? stand according to your height. आपको असेंबली ग्राउंड में जाना है, कहीं जाना है, तो आप कैसे लाइन बनाते हो? हाउ डू यू स्टैंड? यू स्टैंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट. दैट इज फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट. सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा जिसकी हाइट सबसे कम है एंड सबसे पीछे सबसे लंबा बच्चा. ओके, सो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट,
gives us the concept of placing objects according to their height. ठीक है. Now today we will be doing tallest and shortest. So turn to page number 118 in your maths book. TALLEST, tallest, and SHORTEST, shortest. Tallest and shortest. ठीक है. Now tallest and shortest जैसा मैंने बताया, where do we use tallest and shortest? हम यूज करते हैं जब when there are more than two, अगर लोग हैं, बच्चे हैं, ट्रीज है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, when it is more than two. ठीक है. तो who is the tallest child in the class, who is the shortest child in the class? Now suppose there are 5 children. जो मैं ड्राइंग बस ऐसी ड्राइंग बना रही हूँ मैं. ठीक है ना. This is first child. ठीक है. This is second child. Then this is third child. Then this is fourth child. And this is a fifth child. Okay. Now suppose let us give them a name. Suppose this is Raj. ठीक है. ये है मोहित. ये है गोपाल. ये है जॉन. And this is Milan. Okay. These are suppose 5 children. अभी out of these 5 देख करके आप बता सकते हो कि हु इज द शॉर्टेस्ट. इसमें सबसे छोटा कौन है? हु इज द शॉर्टेस्ट. ठीक है. सबसे छोटा कौन है? हाइट देख के हम बता सकते हैं कि मोहित इज द शॉर्टेस्ट. तो इसको आप कैसे लिखोगे? MOHIT, मोहित इज द SHORTEST, shortest. And remember children one thing, when we compare, जब हम taller shorter मतलब जब हम describing word में ER ऐड करते हैं, when we compare, तो उसके बाद it is followed by then, taller than, shorter than. When we use tallest and shortest, that means जब हम describing word में EST लगाते हैं तो हमेशा उसके पहले the आता है. ठीक है. The tallest, the shortest, the longest, the biggest. Okay. So मोहित is the shortest. एंड ये देख करके आप बता सकते हो कि ये जो जॉन है, जॉन इज द टॉलेस्ट. जॉन इज द TALLEST. जॉन इज द टॉलेस्ट. ठीक है. तो मोहित इज द शॉर्टेस्ट बॉय एंड जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय. ठीक है. ये हाइट देख करके हम बता सकते हैं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी compare the height of same type of things. ऐसा नहीं है कि हम सेम तरह की चीज़ों को ही मतलब उनकी सिर्फ हाइट कंपेयर करते हैं या उसी में हम बताते हैं कि टॉलेस्ट क्या है एंड शॉर्टेस्ट क्या है. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. उसमें भी हम बता सकते हैं कि विच इज़ द टॉलेस्ट, क्या सबसे ऊंची चीज़ है. ठीक है. सेम टाइप ऑफ थिंग्स में भी वी कैन टेल विच इज द टॉलेस्ट, विच इज द शॉर्टेस्ट, एंड वी कैन टेल टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट आउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. ठीक है. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. इसको इरेज कर रही हूँ. ये तो ऑल 5 बॉयज वर देयर. सपोज आई टेक 5 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. मैंने 5 चीजें लिया. आई टेक अ कप. ठीक है. आई टेक अ ग्लास. आई टेक अ स्पून. ओके. आई टेक अ बिग कैंडल. मैंने ऐसे बड़ी सी कैंडल ली. and
I take an eraser. This is eraser. Okay. Now out of these 5, ये 5 चीज़ों को देख करके you can tell that which is the tallest and which is the shortest. ठीक है, इसको आप देख करके बता सकते हो कि इसमें tallest क्या है. तो what is the tallest? Candle. देख करके हमें समझ में आ रहा है कि candle is the tallest. ठीक है, CANDLE, candle is the tallest object. इस ग्रुप में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विच इज द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन दिस ग्रुप, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो फर्स्ट टॉलेस्ट इज कैंडल. एंड विच इज द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे छोटी चीज क्या है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे नीची. वी कैन सी दैट इरेजर. कैंडल इज द टॉलेस्ट एंड ERASER, इरेजर इज the shortest. Candle is the tallest and eraser is the shortest. ठीक है. So we can compare the height of two same type of things. We can compare the height of two different type of things also. Similarly एक ग्रुप में हम सेम चीज़ों के ग्रुप में भी बता सकते हैं कि सबसे टॉल क्या है, और हम डिफरेंट तरह की चीज़ों के ग्रुप में भी बता सकते हैं कि सबसे टॉल क्या है. ओके. नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज. This was just for explanation. Now let us do the exercise. क्या exercise? Cross the tallest and take the shortest. Page number is 118, children. CROSS. Cross the tallest and take the shortest. ठीक है. ना अभी तो मैं ये बना नहीं पाऊंगी. 4 एनिमल्स आर देयर, तो मैं उनके नाम लिख रही हूँ. राइट द नेम्स. फर्स्ट यू कैन सी इज GIRAFFE. फर्स्ट इज जिराफ. सेकेंड क्या है, सेकेंड इज कैट. थर्ड इज SQUIRREL, स्क्विरल, जिसको गिलहरी कहते हैं. एंड फोर्थ इज अ काउ. नाउ आउट ऑफ दीज 4 एनिमल्स यू हैव टू क्रॉस द टॉलेस्ट, मतलब जो सबसे टॉल है उस एनिमल को क्रॉस करना है. एंड टेक द शॉर्टेस्ट, मतलब जो एनिमल सबसे छोटा है उसको क्या करना है, टेक करना है. ठीक है. तो देख करके हमें समझ में आ रहा है. यू कैन सी द पिक्चर इन द ग्रुप दैट giraffe is the tallest. As such we know that giraffe is the tallest animal on earth. Giraffe is the tallest animal. तो यहाँ पे tallest क्या है, giraffe है, because it has a very long neck, है ना. तो giraffe is the tallest. तो tallest में हमें क्या करना है, cross. तो we will put a cross on giraffe. आप अपने अपने बुक में करोगे, giraffe में cross लगाना है. And take the shortest. इसमें देख करके हमें पिक्चर में we can make out that स्क्विरल इज द शॉर्टेस्ट. ठीक है. स्क्विरल क्या है, स्क्विरल सबसे छोटी है. तो स्क्विरल पे हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ टिक ऑन स्क्विरल. ओके. एंड इन द नेक्स्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रीज. देखो, दिस इज द फर्स्ट ट्री. फर्स्ट. देन दिस इज द सेकेंड वन. Second one, then third one, and fourth is a coconut tree. Fourth is coconut tree में ऐसे ऐसे इसकी लीव्स होती है ना. कोकोनट ट्री की लीव्स ऐसी होती है. ठीक है. आउट ऑफ दीज 4 विच इज द टॉलेस्ट. टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट देख करके हमें समझ में आ रहा है कि कोकोनट ट्री इज द टॉलेस्ट. तो
कोकोनट ट्री पे हम क्या, वी विल पुट अ क्रॉस. कोकोनट ट्री पे में क्या करना है, क्रॉस लगाना है. एंड विच इज द टॉलेस्ट, दिस फर्स्ट ट्री. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो फर्स्ट ट्री है दैट इज द शॉर्टेस्ट. उस पर हम एक टिक लगाएंगे. ओके चिल्ड्रन, सो टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. फाइन. सो नाउ अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो. व्हेन यू कम टू स्कूल इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, वी कैन मेक, जैसे जो क्लास में बच्चे आते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वी कैन मेक देम स्टैंड. तो आपको उससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. चीज़ों को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो दिस इज टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गर एंड शॉर्टर. जैसे अभी टॉल शॉर्ट के बारे में बात किया, लॉन्ग एंड शॉर्ट. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.